رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، عملے کی چھٹیاں منسوخ ہو گئی۔ ڈپٹی میئر کی ہدایت پر انڈر پاسز اور شاہراہوں پر واٹر کارپوریشن کی مشینری بھی نصب ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر سلمان عبداللہ مراد کا عملے کو ضروری اقدامات کرنے کا حکم دے دیا۔ ٹاؤن چیئرمینز بھی عوام کی خدمت میں پیش چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے آج سے 18 اپریل تک بارشوں کی پیش گوئی کر رکھی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں بارش ہوگی یا نہیں، ابھی شہریوں کو کرنا پڑے گا مزید انتظار۔ حکومت نے بھی تیاری کر لی، رین ایمرجنسی نافذ، عملے کی چھٹیاں منسوخ، مگر آج بارش نہ ہوئی۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے آج سے 18 اپریل تک بارشوں کی پیش گوئی کی تھی۔ شہر میں دن بھر سورج کی آنکھ مچولی جاری رہی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 16 اپریل سے تیز بارش کا امکان ہے۔ کل البتہ امکان ہے تو ہلکی بارش کل بھی، لیکن کل پھر شہر کے بیشتر حصوں میں ہو سکتی ہے۔ لائٹ رین ہی ہے ان 2 دنوں میں ایکسپیکٹڈ، اور اس کے بعد پھر 17 اور 18 کو امکان ہے کہ اچھی بارش ہو جائے، کیونکہ وہ سسٹم جو ایک اور ویو داخل ہوگی وہ بلوچستان کے جنوبی حصوں سے، جو ساحلی علاقے ہیں وہاں سے ہوتی ہوئی پھر کراچی کی طرف وہ ہوائیں آئیں گی، تو اس میں مطلب یہ کہ نسبتاً اچھی بارش متوقع ہے، کسی جگہ پہ ہیوی فال بھی ہو سکتی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی میئر کراچی کو انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت، کہا بارش کے دوران شہریوں کو مشکلات نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے ڈپٹی میئر سلمان مراد سے بھی رابطہ کیا، ٹاؤن چیئرمینز کو دورے کرنے کا حکم دے دیا، چیف سیکرٹری کو انتظامیہ کو متحرک کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی میئر نے انڈر پاسز اور شاہراہوں پر واٹر کارپوریشن کی مشینری بھی نصب کرنے کی ہدایت کر دی۔ سلمان مراد کا عملے کو ضروری اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف سیکرٹری کو انتظامیہ کو متحرک کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق مراد علی شاہ خود صورتحال مانیٹر کر رہے ہیں۔ واٹر کارپوریشن نے بھی حکمت عملی تیار کر لی۔ پچھلے 11 دنوں میں جرائم پر 50% قابو پانے میں کامیاب ہوئے۔ ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ کا دعویٰ، کہتے ہیں اس دوران 8 ملزمان کو ہلاک کیا گیا۔ تفصیلات سلمان سلیم کی رپورٹ میں۔ کراچی میں جرائم میں کتنی کمی ہوئی، ڈی آئی جی ویسٹ کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ ڈی آئی جی ویسٹ کی ایس ایس پی سینٹرل اور ویسٹ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ عرفان بلوچ نے دعویٰ کیا کہ پچھلے 11 دنوں میں 50% اسٹریٹ کرائم پر قابو پایا ہے، جبکہ 8 ملزمان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اور سی پی ایل سی کی فگر جو ابھی میرے سامنے موجود ہے، ویسٹ زون میں ہم نے -50 یعنی کہ 50% کرائم کو ہم نیچے لے کے آئے ان 11 دنوں میں۔ جو ہماری کارروائیاں ہیں اس کے نتیجے میں ہم ٹارگیٹڈ جو آپریشنز کر رہے ہیں ان کے نتیجے میں 50% سے زیادہ کرائم جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ نیچے گیا ہے۔ ڈی آئی جی ویسٹ کا مزید کہنا تھا کہ رواں ماہ 3 اپریل کو بلال کالونی میں نوجوان کو قتل کرنے والا مرکزی ملزم مقابلے میں مارا گیا ہے۔ ملزم کا ساتھی فرار ہے، جسے جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ سینٹرل پولیس نے ایس ایس پی صاحب کی سربراہی میں بڑا زبردست کام کیا، اور سی سی ٹی وی کی مدد سے ہم نے ان کو ٹریس کیا، ان کا ہم نے روٹ بنایا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آج صبح کو ان کے ساتھ انکاؤنٹر میں وہ جو بابر ہے وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ اس کا ایک ساتھی ہے جو اس واردات میں ہے، اس کو بھی ہم نے ٹریس کر لیا ہے، انشاءاللہ جلدی وہ بھی گرفتار ہو جائے گا۔ ڈی آئی جی ویسٹ نے چوری کے موبائل فونز کے IMEI نمبر تبدیل کرنے والے دکانداروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ کیمرامین شکیل کے ساتھ سلمان سلیم، سٹی 21۔ سندھ ہائی کورٹ کے 6 ایڈیشنل ججز نے مستقل جج کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل احمد عباسی نے ججز سے حلف لیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے جواد آصف کی رپورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ کے 6 ایڈیشنل ججز مستقل جج بن گئے۔ حلف برداری تقریب میں سندھ ہائی کورٹ کے ججز، بار ایسوسی ایشن کے نمائندوں سمیت وکلا کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب حلف برداری میں مستقل ہونے والے ججز کے اہل خانہ بھی موجود تھے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل احمد عباسی نے تمام ججز سے عہدے کا حلف لیا۔ پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، یہ کہ بحیثیت جج ہائی کورٹ سندھ میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ مستقل ہونے والے 6 ججز کو 2023 میں ایڈیشنل جج تعینات کیا گیا تھا۔ اب سندھ ہائی کورٹ میں مستقل ججز کی تعداد 32 ہو گئی ہے۔ اب بھی مزید 8 ججز کی اسامیاں خالی ہیں۔ مستقل ججز کا حلف اٹھانے والوں میں جسٹس امجد علی، جسٹس ثنا اکرم منہاس، جسٹس جواد اکبر، جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس عبد الرحمان اور جسٹس ارباب علی ہکڑو شامل ہیں۔
वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास इतवार को गढ़ी खुदा बख्श में ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो की बरसी के जलसे के इंतजाम का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की पुलिस और इंतजामिया को 14 अप्रैल को जलसे की सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजाम के लिए मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने लाड़काना की इंतजामिया को हिदायत की कि मज़ार पर वॉक थ्रू गेट्स की तादाद 40 से बढ़ाकर 56 कर दी जाए ताकि जलसे में शिरकत करने वाले लोगों को आसानी से रसाई मुमकिन हो सके। उन्होंने लोगों की सहूलत के लिए ट्रैफिक के मुनासिब इंतजाम पर भी जोर दिया। कराची में सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम है। अदरक और लहसुन की कीमतें तहाल आसमान से बातें कर रही हैं। आलू 60, टमाटर 150, गाजर 160 रुपए फी किलो पर बरकरार, प्याज 220, मटर 237 और हरी मिर्ची 240 रुपए फी किलो पर मुस्तहकम है। भिंडी 250 और शिमला मिर्च 320 रुपए फी किलो पर ही बरकरार। अदरक और लहसुन 600 रुपए फी किलो पर फरोख्त जारी। मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने ताजर दोस्त स्कीम के रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का मुतालबा कर दिया। एसोसिएशन के तर्जुमान अब्दुल वहीद गद्दी कहते हैं कि ज़्यादातर दूध फरोश पढ़े लिखे नहीं, उनके लिए मोबाइल ऐप चलाना मुश्किल होगा। इस मामले पर ईद की छुट्टियों के बाद मुशावरत करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं अयाज राना की इस रिपोर्ट में। ताजिर दोस्त स्कीम पर तमाम तंजीमों के साथ दुकानदार भी परेशान। FBR ने हर दुकानदार को स्कीम में रजिस्टर होना लाजमी करार दे दिया। सूरत हाल पर मुल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तर्जुमान अब्दुल वहीद गद्दी का कहना है कि 80% दूध फरोश पढ़ना लिखना नहीं जानते, इनके लिए मोबाइल ऐप चलाना आसान ना होगा। देखिए जी, जहाँ तक हमारे दुकानदार का ताल्लुक है, मैं तो समझता हूँ नामुमकिन है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि हमारे यहाँ 80 से 90% लोग जो है वो गैर तालीम याफ्ता हैं। वो ऐप चलाना तो हमारे जैसे के लिए अगर समझना मुश्किल होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं समझता कि वो कर पाएंगे। अब्दुल वहीद गद्दी बोले, सब टैक्स देना चाहते हैं मगर इसके लिए आसान तरीक़ेकार होना चाहिए। देखिए एक मौजूद शहरी के नाते किसी भी शख्स को टैक्स देने से इनकारी नहीं होना चाहिए, और हम भी टैक्स देना चाहते हैं, हमारे नुमाइंदे भी टैक्स देना चाहते हैं, मगर उसका तरीक़ेकार वाज़े तौर पर आसान हो ताकि वो बाआसानी अदा करें। अब्दुल वहीद गद्दी का कहना है कि अब तक ताजिर दोस्त स्कीम पर एसोसिएशन में कोई मुशावरत नहीं हुई, इजलास के बाद ही कोई लाए अमल तैयार हो सकेगा। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अयाज राना, सिटी 21। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान आलमी बॉन्ड्स की $1 अरब की अदायगी कर दी। स्टेट बैंक हुकाम की जानिब से ट्वीट के जरिए आगाह किया गया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉन्ड के $1 अरब की अदायगी कर दी गई। 12 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉन्ड के असल और सूद के साथ $1 की अदायगी होगी। बैंक एजेंट के जरिए बॉन्ड्स होल्डर्स को अदायगी की गई है। महंगाई ने कारोबार को मांग कर दिया। ईद सीजन में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 60% कारोबार कम हुआ। कराची कोऑपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी असलम खान का कहना है, चांद रात को मार्केटों में रश होने के बावजूद कारोबार पहले के मुकाबले में शदीद मुतासर हुआ। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। महंगाई से ईद की खुशियां भी फीकी, शहरी खरीदारी ना कर सके, दुकानदार का कारोबार मुतासिर होने का शिकवा। कराची कोऑपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी असलम खान का कहना है, पहले के मुकाबले में कारोबार 60% मुतासिर हुआ, जिसकी सबसे अहम वजह बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है। पब्लिक में रश होने के बावजूद परचेजिंग पावर पब्लिक के पास नहीं थी। वजह ये थी कि बिजली के बिल भी इतने ज़्यादा आ रहे थे लोगों के पास, गैस के बिल भी बढ़े हुए हैं, ऊपर से पेट्रोल भी महंगा कर दिया गया था। तो और फिर एक और मुसीबत बच्चों के साथ ये हुई है, स्कूल के बच्चों की भी फीसें देनी पड़ी माँ बाप को। मार्केट में दुकानदारों का कहना है, ईद की छुट्टियों के बाद दुकानों में माल मौजूद है, जो कारोबार मुतासिर होने का वाज़े सबूत है। तो डेफिनेटली महंगाई की नज़र हुआ है ये वाला सीज़न भी। अगर मैं प्रीवियस 2023 को देखूँ और 2024 को देखूँ तो ग्राफ काफ़ी नीचे की तरफ गया है, यानी इतना नीचे गया है कि परचेजिंग पावर 40% अगर मैं बोलूँ तो गलत ना होगा। मतलब ये भी बच्चों की शॉपिंग कराएं, वो तरजीह दे रहे थे कि पहले उनकी शॉपिंग करा लें, वो उन्होंने अपनी उनकी कराई तो फिर उनके लिए उनके पैसा इतनी अमाउंट नहीं बची थी। फिर यहाँ पर आके वो समझ ले कि 1500 को छोड़े, उसको बोल रहे हैं 700 ले लो, 800 ले लो, 1200 ले लो, इस तरह की पोजीशन आ रही है। सलीम खान का कहना है, जब तक महंगाई में कमी नहीं होगी, आवाम की कुव्वत खरीद बहाल नहीं हो सकेगी। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अयाज राना, सिटी 21। अब आपको बताएं कि ईद का चौथा रोज दावती उड़ाने के बाद शहरियों ने सफारी पार्क का रुख कर लिया। इंतजामिया ने जिपलाइन की टिकट पर 50% राय दे दी। यहाँ आने वालों के मजे हो गए, किसी ने डायनो सफारी की तो किसी ने जिपलाइन को एंजॉय किया, जबकि खुशगवार मौसम ने सफारी पार्क में पिकनिक के लिए आने वाले शहरियों का मजा दोबारा कर दिया। ये रिपोर्ट देखें।
दावतें उड़ाने के बाद सैर सपाटे, किसी का सी व्यू का रुख और कोई पहुंचा सफारी पार्क। इंतजामिया भी ईद की खुशी में शरीक, जिप लाइन पर 50% की रियायत दे दी। बसों में भरकर फैमिलीज पिकनिक के लिए सफारी पार्क पहुंची। बच्चे घर वालों के साथ सैरो तफरी करने में मगन। कोई रेलगाड़ी में घूम रहा था तो कोई झूले झूलने में मसरूफ। बच्चे जानवरों को देखकर खुशी का इजहार करते नजर आए। सुहाने मौसम ने सफारी पार्क में पिकनिक के लिए आए शहरियों का मजा दोबाला कर दिया। अच्छा माहौल है माशाल्लाह, एंजॉय कर रहे हैं। मौसम भी माशाल्लाह अच्छा खुशगवार हो गया है, जिसकी वजह से फैमिली को आज हम लेके आए हैं, अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईद के मौके पर फ्लाई सफारी की जानिब से शहरियों को 50% डिस्काउंट देकर खुसूसी रियायत दी गई। शहरियों ने कहा, फ्लाई सफारी केएमसी और सफारी पार्क की तरफ से अच्छा इकदाम है, हमने बहुत एंजॉय किया। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, एडवेंचर वगैरह होना चाहिए ताकि डर वगैरह खत्म हो, डिफरेंट चीज़ें पाकिस्तान में पता चले, हाँ भाई पाकिस्तान है, कुछ डिफरेंट है, यहाँ कुछ नया है। फ्लाई सफारी हेड रजा कहते हैं, हमारा मकसद ईद में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तफरीह फराहम करना है। फ्लाई सफारी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लोगों के लिए, लोगों की इंजॉयमेंट के लिए। ईद के मौके के ऊपर सफारी पार्क कराची का सबसे बड़ा पार्क है और यहाँ पे हज़ारों लोग जो है वो ईद के पहले दिन से आ रहे हैं और केएमसी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग की लोगों को डील करने के लिए और उनके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हमने 50% प्राइसेस अपनी तमाम राइड्स की गिरा दी, जिसके अंदर जिप लाइन है और बंजी जंप है। फ्लाई सफारी की राइड में जिप लाइन और बैंक जंपिंग शामिल है, जिसमें ईद के 5वें रोज तक डिस्काउंट जारी रहेगा। ईद की छुट्टी के आखिरी रोज शहरियों के सैर सपाटे जारी, लोगों की बड़ी तादाद ने तफरीही मकामात का रुख किया। कराची के चिड़ियाघर में बच्चे बड़े जानवरों से महसूस होते रहे। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट पे। कराची का तारीखी चिड़ियाघर हर त्योहार में शहरियों की तवज्जो का मरकज बन जाता है। ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा, शहरी बच्चों के साथ यहाँ का रुख जरूर करते हैं। आज भी कराची के चिड़ियाघर में जंगली जानवर बच्चों की खुसूसी दिलचस्पी का मरकज बने रहे। किसी ने बत्तखों को पॉपकॉर्न खिलाए तो कोई बंदरों को फल पेश करता रहा। चिड़ियाघर की ट्रेन और स्टॉल्स पर फरोख्त होने वाले खाने बच्चों को खूब भाए। बच्चों का कहना था कि जंगल के बादशाह शेर को करीब से देखकर हैरत हुई, लेकिन डर नहीं लगा। शेर को देख के बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि हम टीवी में देखते पर आज रियल देख के बहुत अच्छा लगा। दुआ के मैं बहुत मजा कर रही हूँ। शहरी बोले कि चिड़ियाघर इसलिए आए हैं ताकि बच्चे जानवरों को करीब से देख सकें। बच्चों ने आज करीब से जानवरों को देखकर बहुत अच्छा महसूस किया। लोगों की बहुत ख्वाहिश थी बहुत दिनों से कि मैं देखूं, तो मैंने कहा बच्चे बड़े होते यार, अब देखे तो एंजॉय करें। बस बच्चे खेल लेते हैं कि जानवर देख लेंगे, खुश हो जाएंगे देख के। चिड़ियाघर न सिर्फ एक बेहतरीन तफरीही मकाम है, बल्कि यहाँ जंगलों में पाए जाने वाले तमाम जानवरों की इकसाम और उनकी तारीख भी फराहम की जाती है। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ईद की छुट्टी और सुहाने मौसम ने शहरियों को घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया। शहरियों की बड़ी तादाद सी व्यू पर पहुंच गई। कोई दोस्तों की टोलियों के साथ मौसम एंजॉय करता रहा तो किसी ने खानों पर दिल खोलकर हाथ साफ किया। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। कराची का साहिल फिर आबाद हो गया। ईद की छुट्टी में मौसम खुशगवार होते ही शहरियों की बड़ी तादाद अपने पसंदीदा तफरीही मुकाम सी व्यू पर खींचे चले आई। बड़ों ने सुहाने मौसम और ठंडी हवाओं का खूब लुत्फ उठाया तो बच्चे घोड़े, ऊंट की सवारी और खानों में मसरूफ नजर आए। शहरी बोले सी व्यू आकर सबने खूब एंजॉय किया। मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ईद के चौथे दिन हम आए। सी व्यू में हम देखा कि मौसम अच्छा है, हवा चल रही है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम अपने बच्चों के साथ आए, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। 3 दिन घर पे गुजार दिए, बस अभी तक गए यहाँ पे आ गए, घूमने के लिए आ गए, बस एंजॉय कर रहे। बच्चों का कहना था कि 3 दिन गर्मी ने परेशान किए रखा, आज ईदी खुलकर खर्च की। मैं अपने मम्मा पापा के साथ आई हूँ और मौसम काफ़ी अच्छा है और मैं यहाँ बड़े अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। काफ़ी गर्मी थी ईद के तीनों दिन, लेकिन आज समुद्र पे काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। इन्होंने ईदी पैसे जमा किए थे, इन्होंने कहा था कि जो ना घुमाने लेके चलो, मैंने चलो इधर सिविल आते हैं, मौसम भी अच्छा हो रहा था तो इस वजह से हम इधर आए घूमने फिरने। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में 15 अप्रैल तक बारिशों की नवीद सुना दी गई। खुशगवार मौसम ने न सिर्फ शहर की खूबसूरती को निखारा बल्कि लोगों के मिजाज पर भी मस्बत असरात मरतब करता है। कैमरामैन शकील खान के साथ आयमा खान, सिटी 21।
योमिया उजरत पर काम करने वालों की ईद भी कसम पुरसी में गुजर गई। काम न मिलने से फुटपाथ किनारे बैठे मजदूर ईद पर भी खुशियों से महरूम रहे। तफसीलात जान लेते हैं फरहान खान की इस रिपोर्ट में। ईद हर साल खुशियों का पैगाम लाती है, लेकिन इस बार बहुत से चेहरे जरिया माश के हवाले से परेशान नजर आए। सड़क किनारे बैठे योमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर महंगाई और काम ना मिलने से अजियत में मुब्तला। अफसुर्दा बैठे मजदूरों का कहना है कि महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी। ईद के तीनों दिन दिहाड़ी की आस में बीत गए, अब तो कई दिन तक काम नहीं मिलता। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि महंगाई इतनी है कि हर आदमी महंगाई से पीछे भाग रहा है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, कहाँ से बन लगाएगा। ईद खाएगी कैसी ईद? गरीब की कोई ईद नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी है। अब रोटी लेने जाओ तो 25-30 रुपए की रोटी है। अब गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? उसके 4-6 खाने वाले हों। मैंने पूरे मई से रमज़ान के अंदर सिर्फ 2 दिहाड़ियाँ लगाई हैं। कितने की? 1200 रुपए का। मुझे बताओ, मेरे पीछे इतने खाने वाले मैं कहाँ से पूरा करूँगा? बेलचा, फावड़ा, छेनी, पेंट ब्रश और प्लास्टर का सामान सजाए इन मजदूरों की आंखें सुबह से शाम तक आने जाने वालों पर टिकी रहती हैं और अक्सर सरशाम मायूस घरों को लौट जाती हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरहान खान, सिटी 21। कराची में बर्फबारी के मजे। जी हाँ, कराची में एक ऐसी जगह जहां आप बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। एंजॉय करने के लिए फैमिलीज ने विंटरलैंड का रुख किया। मज़ीद जान लेते हैं राहिल बेग से। जी बिल्कुल, कराची में बर्फबारी ये देखने और सुनने में बहुत अजीब सा लगता है, मगर कराची वाले ईद की छुट्टियां तो अभी जारी हैं और जबकि ईद ख़त्म हो चुकी, कराची वाले इस वक्त विंटरलैंड में मौजूद हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर बर्फबारी से लुत्फानंदोज होते लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी, कराची में बर्फबारी, अब आपको ना मरी जाना पड़ रहा है, ना सवाद, ना नारान, ना कागज? जी बहुत मजा आ रहा है। दिल गार्डन हो रहा है। दिल गार्डन और ठंडा नहीं हो रहा है? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। तो फैमिली के साथ आप आई हैं? जी फैमिली के साथ आई हूँ, ये मेरी सिस्टर है। बिल्कुल जी, आइए इनसे भी बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी बताइए कैसा लग रहा है? वी एंजॉयड अ लॉट, लिटरली बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल जी, बहुत मजा आ रहा है। लोग इस पल को मिस नहीं करना चाहते, मोबाइल में कैप्चर कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, फैमिलीज हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी, कराची में बर्फबारी? बहुत मजेदार है। बहुत मजेदार है। जो ईद की छुट्टियाँ हैं उसे खूब इंजॉय कर रहे हैं? बहुत। कैसी गुजरी आपकी ईद और आपकी छुट्टी कैसी? बहुत अच्छी और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम, बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल जी, बेहतरीन जगह ही, बहुत मजेदार है। और अगर आपके पास टाइम कम है या बजट कम है तो आप मुख्तसर वक्त में यहाँ पर आ सकते हैं और बर्फबारी के जो खूबसूरत नज़ारे हैं उससे लुत्फानंदोज हो सकते हैं। जो शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त विंटरलैंड में मौजूद है, जो कि बर्फ़ से बनी हुई चीज़ों के साथ साथ मसनूई बर्फबारी से खासी लुत्फानंदोज हो रही है। जी, अब आप कराची में ही यूरोप और खलीजी ममालिक के नज़ारे कर सकेंगे। खूबसूरत और जदीद तर्ज की स्ट्रीट कायम कर दी गई। ये स्ट्रीट कहाँ है और इसकी क्या खुसूसियात हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। तो आज हम मौजूद हैं कराची के एक ऐसे स्ट्रीट पर जहां आते ही आपको गुमान होने लगता है आप या तो दुबई में हैं या फिर यूरोप में हैं। जी हाँ, कराची में एक ऐसे ही बैनुल अक़वामी तर्ज की स्ट्रीट कायम कर दी गई है और जिसमें तमाम चीज़ें उसी इंटरनेशनल तर्ज की बनाई गई हैं जो आजकल कराची वालों की ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। आखिर ये स्ट्रीट कहाँ है, किस जगह है और इस पर क्या खास बात है, तो आइए आपको बताते हैं। कराची में एक शानदार तरक्की का आगाज। शहर कायद में दुबई और यूरोप जैसे नज़ारे। शहर में पहली बैनुल अक़वामी म्यार की स्ट्रीट तैयार जो रोशनियों के शहर की खूबसूरती में इजाफे का बाइस है। बुखारी कमर्शियल की ये स्ट्रीट पाकिस्तान की रिवायती स्ट्रीट से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद है। जदीद तरीन डिजाइन म्यारे जिंदगी को बेहतर बनाता है। स्ट्रीट अवामी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। पैदल चलने वालों के लिए न सिर्फ अलग रास्ता बल्कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ साथ अलग सिग्नल भी दिया गया है। आग लगने की सूरत में फायर हाइड्रेंट भी नस्ब किया गया है। इसके साथ साथ बेहतरीन पार्किंग एरिया भी वक्फ कर दिया गया है। पैदल चलने वालों की आसानी के लिए भी सिग्नल पर एक बटन नस्ब किया गया है। इसको दबाते ही
आप रोड बआसानी तरीके से पार कर सकते। खूबसूरत और दिलकश मंजर की अक्कासी करती इस स्ट्रीट को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन है और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, स्पेशली कराची वालों के लिए जो ये बनाया गया है हमारे लिए। इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त है कि बहुत अच्छी वाइब आई भी है और बीइंग मुस्लिम हम लोगों को बस अब इसकी जो है ना सफाई रखनी है। पूरा जिस तरह गवर्नमेंट ने या जिन्होंने भी ये बनाया है उसका उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, अब हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको क्लीन रखें। बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर और हम लोग एंजॉय भी बहुत कर रहे हैं। बहुत अच्छा बनाया है सेटअप, जितना भी इसके अंदर जो भी करा हुआ है, जितनी भी मतलब इसके अंदर वर्क हुआ है, जितना भी, वो बहुत अच्छा है। अपने शहर के अंदर नहीं है, दुबई आ गए। शहरी खुशी का इजहार करते कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान नहीं दुबई या यूरोप में है। शहरियों का हुकूमत से दरख्वास्त करते हुए कहना था कि पूरे शहर को इसी स्ट्रीट की तरह बनाया जाए। कराची में इंटरनेशनल मेयार की स्ट्रीट्स बनना शुरू हो चुकी हैं और बनने वाली की पहली स्ट्रीट अवामी तवज्जो का मरकज बनी हुई है और इस पे हमारी भी जिम्मेदारी है कि इसकी सफाई सुथराई और इसकी मेंटेनेंस का ख्याल हम खुद भी रखें। कैमरा टीम के साथ राहिल बेग, सिटी 21।